جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو انویٹیشن لے لیں، 15 اور 16 نومبر کو لاہور میں ایکسپو سینٹر پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بڑی ڈیری ایکسپو ہونے جا رہی ہے، آپ لوگ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ میں انشاءاللہ ہال نمبر 1 سٹال نمبر 67 پہ آپ سے ملاقات کا منتظر رہوں گا۔ آپ سے 2 دن گپ شپ لگائیں گے، آپ کے معاملات پہ بات کریں گے، آپ کی مشکل یا آپ کے مسائل ان کو حل کرنے کی اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹاپ کوالٹی کا سیمن بھی اویلیبل ہوگا۔ اپنا کنٹینر لیتے ہیں، آپ اپنے جانوروں کی ویڈیو لیتے ہیں، آپ کو بیسٹ کوالٹی کا سیمن بھی آپ کو موقع پہ مہیا کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں۔ اگر آپ ڈیری فارمنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکون سے چاہتے ہیں کوئی ڈیری فارمنگ آپ کی چلتی رہے، آپ کو زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ پیسے بنائیں، آپ کا ہارٹ ملٹی پلائی کرے، آپ ذہنی پرابلم سے باہر نکلیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، تو کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے آج ان کا ذکر کروں گا، ان کو پلے سے باندھ لیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک فارمر سے میرا رابطہ ہوا، کہتے جی میری گائیاں بہت چاٹ رہی ہیں زمین کو، فرش کو، تو آپ سے منرل منگوایا، مجھے جلدی سے منرل بھیج دیں۔ میں نے ان کو کہا بھائی آپ کو منرل کے ساتھ نا جی ڈی سی پی بھی دینا پڑے گا۔ وہ کہتے یار ڈی سی پی تو ہم دے رہے ہیں 3 مہینے سے۔ میں نے کہا بھائی کتنا دے رہے ہو اور کون سی کمپنی کا دے رہے ہو؟ وہ کہتے جی ہم 30 گرام مطلب 30 گرام جو ہے ہم منرل دے رہے ہیں، سوری ڈی سی پی دے رہے ہیں۔ وہ میں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے واقعی گائیاں رکھی ہیں یا آپ نے بکریاں رکھی ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہم نے تو گائیاں رکھی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی جتنی خوراک آپ دے رہے ہو، جتنی ڈوزیج آپ دے رہے ہو، اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ڈیری فارمرز جب کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کم از کم 15 لوگوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، جس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ نان ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل جن کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ ڈیری فارم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج 5 چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ان پہ لازمی عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے ڈاکٹر مزمل ہے، ڈاکٹر اے ہے، ڈاکٹر بی ہے اور ڈاکٹر سی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ایک کنسلٹنٹ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو مستقل فالو کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، اینو پوچھ اونو پوچھ اونو داس اینو داس، وہ اس قدر پرابلم کو کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور بعد میں زیادہ تر فارمز پہ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے جب میری ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، ہم وہ بھی کہتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے، گھر کی مرغی دال برابر۔ تو بھیا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو بندہ بھی جس سے آپ مشاورت کر رہے ہیں، وہ کوئی سا بھی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا کنسلٹنٹ ہے، اس کے ساتھ بنے رہیں، اپنے تمام مسائل کو اس کے ساتھ تذکرہ کریں، مسئلہ حل ہوتا ہے تب بھی اس کو بتائیں، مسئلے کا حل نہیں ہوتا تب بھی اس کو بتائیں، تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ آپ کا کنسلٹنٹ چاہے 50 بندوں سے رابطہ کر لیں، وہ اس کی اپنی سر درد ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جو لوگ میرے سے کنسلٹنسی لیتے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ فارم پہ مسئلہ بن گیا۔ یہ بات ہے جی 2022 کی سٹارٹ کی، فروری 2022 کی۔ فارم پہ بچے مرنے لگ گئے، پہلا بچہ مرا، دوسرا بچہ مرا۔ میں نے ان سے کہا بھائی فارمر کو میں نے کال کی، میں نے کہا ڈاکٹر فارم پہ موجود ہے، پوسٹ مارٹم کرواؤ۔ پوسٹ مارٹم نہیں کیا، وہ جی دکھ بڑا ہوا جی، پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے، دفنا دو جی۔ جب تیسرا مرا نا تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ ڈاکٹر کی بات ہے، مان لینی چاہیے۔ جب پوسٹ مارٹم کیا تو انہوں نے مجھے فوٹوز بھیجی، اور میں نے دیکھا یار یہ 5-5 6-6 7-7 دن کے بچے ہیں جو ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کے پھیپھڑوں کی تباہی نکلی ہوئی ہے، یہ کیسا زبردست قسم کی انفیکشن ہے۔ میں نے پھر اپنے طور پہ، چونکہ میں ان کا کنسلٹنٹ تھا، میرے اوپر ذمہ داری تھی، ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا تھا، میں نے پھر آگے کچھ لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، ہم نے پھر ایک نتیجہ اخذ کیا، اس کا ایک حل نکالا، اور الحمدللہ
उस हल के बाद हमारे जानवर ठीक हो गए। हमने एक वैक्सीन स्पेशल जो है वो इंपोर्ट करवाई, अपने जानवरों को, बच्चों को करवाई, हमारे बच्चे स्टेबल हो गए। लेकिन वो मेरे ऊपर था कि चूंकि मेरे साथ फार्मर चल रहा है, मेरी जिम्मेदारी है कि फार्मर जो है उसका कोई भी अगर मसला आ जाता है तो मैंने उसका सोल्यूशन देना है फार्मर को, फिर चाहे मुझे 10, 15, 20 लोगों से राब्ता क्यों ना करना पड़े। लेकिन अगर फार्मर मुझे भी कहता है, 4 बंदों से और राब्ता कर लेता है, हर बंदा नई कहानी सुनाएगा। डॉक्टर मुजम्मिल कुछ कहेगा, डॉक्टर ए कुछ कहेगा, डॉक्टर बी कुछ कहेगा, सी कुछ कहेगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। बाद में कोई बंदा भी जो है ना जिम्मेदारी नहीं लेगा। एटलीस्ट एक कंसल्टेंट जो आपने रखा होता है वो जिम्मेदार होता है, उसके सर पे जिम्मेदारी होती है। अगर आप उसको मुकम्मल कमांड नहीं देते हो, पूरी दौड़ उसके हाथ में नहीं देते हो, तो उस जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं आती, नुकसान फिर आपका होता है। तो ये पहली बात है, फॉलो अ सिंगल पर्सन टोटली 100%, उसको 100% फॉलो करें। पॉइंट नंबर 2, हमने देखा है डेयरी फार्म पे डॉक्टर आते हैं, 10 दिन गुजारते हैं, 2 महीने गुजारते हैं, 5 महीने गुजारते हैं, 6 महीने गुजारते हैं, तो यकदम पता लगता है कि डॉक्टर नाराज हो गया या फार्मर नाराज हो गया। इतनी जल्दी नाराज हो जाते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। याद रखें, कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए आपके डॉक्टर का फार्म पे बना रहना जरूरी है, टीमें तब्दील नहीं करनी। थोड़ा सा मसला आता है, 4 गाय ने बच्चे फेंक दिए, टीम तब्दील करो जी, डॉक्टर नु आंदा कुछ नहीं। 10 जानवरों को साड़ू आया, टीम तब्दील करो जी, डॉक्टर नु आंदा कुछ नहीं। भाई मसाइल, कौन सा फार्म है जिस पे मसले नहीं होते? तमाम फार्म पे मसाइल होते हैं, लेकिन टीम का हल करना उसका मकसद नहीं है, टीम को चेंज करना उसका हल नहीं है। उस टीम के साथ बैठ के उस मसले का हल निकालना है। तो दूसरा मसला, दूसरा पॉइंट, अपने साथ जितने भी आपके टीम के मेंबरान हैं वो आपके साथ मुस्तकिल बने रहें। आपके फार्म पे रहने वाला डॉक्टर जितना ज्यादा लंबा टाइम आपके साथ गुजारेगा उतना ही आप कामयाब होंगे। मैं चाहता हूं कि जो जो भी डॉक्टर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, फार्मर कम से कम 5 साल एक डॉक्टर के साथ चले, आप देखिएगा आप बेहतर हो जाएंगे, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, अपनी लेबर को फैसिलिटेट करें। अपनी लेबर को जिस कदर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेबर भी बहुत चेंज होती है फार्म पे, चिड़ियाघर बनाया होता है, आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, बंदे तब्दील होते जा रहे हैं, नए बंदे आते हैं, गायों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, वो फिर 2 महीने लग जाते हैं उनको गायों को अंडरस्टैंड करते को, फिर आप लेबर चेंज कर लेते हो। फार्मर को चाहिए लेबर को फैसिलिटेट करे, लेबर को उसका काम फिक्स करके दें। हमारे यहाँ हमने देखा है कि लेबर जो है सुबह पट्ठे भी कुतर रही है, दोपहर में जड़ा है शेड भी साफ कर रही है, शाम को मेहमान आते हैं, उन मेहमानों की चाय भी बना रही है। वो कोई मतलब कोई काम की रूटीन ही नहीं है, जिधर दिल करता खोते की तरह भगा दिया। नहीं, फार्म पे काम करने वाले लेबर की काम को फिक्स करें, उसको बताएं ये तू काम कर, उसके बाद तू फारिग है, कुछ नहीं तुझे कहेंगे। फार्म पे लेबर को फैसिलिटेट करने का ये बेहतरीन तरीका है। इंसेंटिव्स दें। जैसे मुझे याद है, मेरे पास एसपी डेयरी फार्म पे एक वर्कर था और वो बफलो की हीट पकड़ने के लिए मैंने उसको इंसेंटिव दिया हुआ था कि एक भैंस जो है अगर वो हीट में डिटेक्ट करता है तो मैं उसको फी भैंस 100 रुपया दूंगा। तो वो महीने में को 50-60 इंसेमिनेशंस करवा लेता था, तो उसको जनाब को 5 से 6 हज़ार रुपये हम इजाफी देते थे। क्यों? वो हीट डिटेक्शन करता रहा बफलो में, बताता था कि यार ये मज बोली है, टीका रख दो, वरना उसकी लेबर को क्या जरूरत है स्पेशल टाइम निकालने की, तो दसने की क्या बोली है, टीका रखो। उसको चूंकि पैसे देते थे, इंसेंटिव्स देते थे, वो खुशी से काम करता था और उसने बहुत लंबा अरसा हमारा ये साथ दिया। तो लेबर को लंबे अरसे तक फार्म पे बनाए रखे। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, हमारे एक फार्मर है शेख याया साहब शोरकोट के, आपने उनके वीडियो में देखा भी हुआ है। उनके फार्म पे जो वर्कर्स हैं 2013 से काम कर रहे हैं, उनको 10-10 साल हो गए वर्कर्स को काम करते को। उनके साथ वीडियो बनाएंगे कि वो लेबर को कैसे मैनेज करते हैं, आपको दिखाएं। तीसरा पॉइंट। अब आ जाए पॉइंट नंबर 4। फार्म पे कलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे लोग डंडी मार जाते हैं। एक जानवर खड़ा है, प्रोडक्टिव नहीं है, दूध नहीं दे रहा, सेल करके परा कटो, ना वो गब्बन है ना वो दूध दे रहा है, तो सारे ताज बना के सजा कर रखे जी। वो भाई नहीं, फार्म पे कलिंग बहुत जरूरी है। कलिंग से मुराद है कि ऐसे जानवर जो ना तो दूध दे रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव हैं और प्रेग्नेंट भी नहीं है, और आपको यह भी नजर आ रहा है कि अगले 1 साल में वो आपको टके का प्रॉफिट नहीं देंगे। ऐसे जानवरों को सेल कर देना ही बेहतर है।
अदरवाइज क्या होगा कि जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स जब फार्म पे ज्यादा हो जाएंगे तो उनका बर्डन प्रोडक्टिव एनिमल्स पे आएगा, आपके जेब में कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स के ऊपर लगेगा। बाद में आप रोएंगे कि डेयरी में आपको बचता कुछ नहीं है। याद रखें, जो आपके कामयाब डेयरी फार्म है, कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात कर लूं, 10 से 15% एनुअल कलिंग करते हैं। अगर 100 जानवर हैं तो 10 से 15 जानवर सालाना निकल रहे हैं। जरूरी है, कलिंग जरूरी है। जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है, ये 10 से 15% में सारे वो जानवर शामिल हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, बच्चा फेंक गए हैं, थन मरवा गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, टांग तोड़वा गए हैं। जो भी जानवर किसी वजह से फार्म पे निकल गया वो आपकी कलिंग में काउंट हो जाता है। तो 10 से 15% तक जो है आपकी होती है। कलिंग लाजमी करें ताकि फार्म पे हर जानवर जो मौजूद है उसकी एक वैल्यू हो और पता हो कि यार ये जानवर जो है ये प्रॉफिट दे रहा है, और ये जो जानवर है ये 6 महीने बाद प्रॉफिट देगा, ये जानवर जो है 3 महीने बाद मिल्किंग में आकर प्रॉफिट देगा, ये बच्ची जो है ये गब्बर होने के बाद जब बच्चा दे के आएगी तब प्रॉफिट देगी। हर जानवर का प्लान वर्क तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जानवर गब्बर नहीं हो रहा, बच्चा फेंक के आ गया, दूध नहीं दे रहा, गब्बर भी नहीं हो रहा, अब इस पे जनाब आप जोर पे जोर लगाई जाओ, ये आपको नुकसान देगा। कलिंग बहुत जरूरी है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपसे, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन ये 5 पॉइंट्स पे मैंने फोकस करना था आज। कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज सबसे ज्यादा किस पे होता है? फीडिंग पे और जेनेटिक्स पे। ना फीड पे कंप्रोमाइज करना, फीड पे कंप्रोमाइज करेंगे तो मौके पे चोट लगेगी। कैसे? ना बच्चियों की ग्रोथ आएगी, ना दूध की पैदावार आएगी, ना जानवर अच्छा तैयार होंगे, ना ही बच्चियां टाइम पर बच्चे देंगी, मौके पे चोट लगेगी। जेनेटिक्स पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले 3 सालों में नुकसान उठाएंगे। मैंने एक तहरीर पढ़ रहा था, एक मेरे हमारे दोस्त ने फेसबुक पे वो तहरीर लिख रहे थे कि मेरे जानवर जैसे ही वो आए इंपोर्ट के थे तो उन्होंने 8000 लीटर दूध दिया। तो वो कह रहे थे कि कुछ अरसे के बाद जब इनकी बच्चियां जो है वो दूध देने पर आई तो किसी ने 8000 लीटर दूध नहीं दिया। मतलब जो गायें थी वो 8000 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन आने वाली जो नस्ल थी वो 8000 लीटर दूध नहीं दे सकी। आने वाली नस्ल जो थी वो पहली नस्ल से बेहतर साबित नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, जेनेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मेहरबानी करें। अगर आप महंगा सीमन अफोर्ड नहीं करते हो तो फार्म पे, मिसाल के तौर पे मेरा 100 जानवरों का हर्ड है, 100 जानवरों में मेरे जो है मुझे तकरीबन 300 के करीब जो है ना डोजें चाहिए उनको प्रेग्नेंट करने के लिए। मिसाल दे रहा हूं, 300 डोजेस का मतलब ये हुआ कि मुझे तकरीबन 20 लाख रुपए का सीमन चाहिए। अगर मेरे पास जेब में 5 लाख रुपया है और 15 लाख नहीं है तो भाई 2 से 3 जानवर सेल कर दो, प्रेग्नेंट बच्चियां सेल कर दो, जो पैसे आएंगे उससे अपने पूरे सीजन का सीमन ले लो। जेनेटिक्स पे कंप्रोमाइज ना करना। ये ना हो कि आज आपके फार्म की एवरेज 26-27 हो, आने वाली बछड़ियां जब मिल्किंग के अंदर आए तो पता लगे भाई उनका तो दूध जो है अपनी मदर से भी कम है। फिर ये ऐसा रोग है जिसका हल कोई नहीं। तो अपने सीमन पे कंप्रोमाइज नहीं करना, जेनेटिक्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना, फीडिंग पे कंप्रोमाइज नहीं करना। फीडिंग आपको मौके पे चोट पहुंचाती है, जेनेटिक्स आपको लॉन्ग रन में चोट पहुंचाती है। पता आपको लगेगा 2-3 साल बाद जब बछड़ियां काविंग करके आएंगी, दूध नहीं दे रही होंगी तो सिवाय सर खुजाने के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कंप्रोमाइज नहीं करना, ना फीडिंग पे करना है ना ही जेनेटिक्स पे करना है। मैं फिर दोहरा दूं, अपनी टीम जिसमें आपका कंसल्टेंट एक रखें, उससे मशवरा करें। नंबर 2, फार्म पे डॉक्टर बार बार चेंज नहीं होने चाहिए, जो टेक्निकल स्टाफ है वो एक होना चाहिए, टीम लंबी चलनी चाहिए। नंबर 3, लेबर को फैसिलिटेट करें, लेबर फार्म पे मुस्तकिल रहनी चाहिए, बार बार चिड़ियाघर की तरह बंदे चेंज नहीं करने। नंबर 4, कलिंग जरूरी है, कलिंग के बगैर भाई मामला नहीं चलेगा। नंबर 5, नो कंप्रोमाइज ऑन फीडिंग एंड जेनेटिक्स। आप देखिएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप पैरों पे हो जाएंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे, आपको चीजों में मजा आने लग जाएगा। बाकी लिस्ट तो डेयरी फार्म को बेहतर करने की बहुत लंबी है, हम इस पे 20 पॉइंट भी बना सकते हैं, 50 पॉइंट भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे वीडियोस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसका तस्करा आपके साथ करते रहेंगे। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।